اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستوں، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 21 رمضان المبارک 1443 ہجری، 23 اپریل 2022 عیسوی، 10 گتے بیساکھ 2079 بکرمی، سنیچر کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام آپ روزانہ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں، اور ہر سنیچر کے دن آپ کے سوالوں کا جواب لے کر حاضر خدمت میں ہو جاتا ہوں۔ اور یہ پروگرام ابھی فی الحال فیس بک ID محمد مستقیم مدنی پر لائیو پیش کیا جاتا ہے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ اسٹوڈیو کا نمبر میں پرابلم آنے کی وجہ سے صرف میری آواز آپ سن سکتے ہیں، لیکن آپ اپنا سوال موبائل کے ذریعے سے ہم تک نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ تو آپ جو ہے ہمارے فیس بک ID پر جڑیں، محمد مستقیم مدنی، اور اس میں اپنے سوالات لکھ کر بھیجیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ میرے محترم ساتھیوں، دوستو، دیکھتے ہی دیکھتے آج 21 رمضان میں ہم داخل ہو چکے ہیں، بلکہ آدھا دن گزر چکا ہے۔ رحمتیں، بخششیں، مغفرتیں لوٹنے والے لوٹ رہے ہیں، اور بدقسمت بدبخت قسم کے لوگ ابھی بھی اس رحمت سے دور ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، ہمارا یہ پروگرام 2 سالوں سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور ہر پروگرام کا YouTube چینل بھی بنایا جاتا ہے، جو صدائے حق کے نام سے آپ کو سرچ کریں گے تو ملے گا۔ میری گزارش ہے کہ آپ وہاں پہنچیں اور اس کو سبسکرائب کریں، اور جو ہے لائک کریں وغیرہ وغیرہ، تاکہ ہمارے دعوتی کام میں اس سے فائدہ اور مدد حاصل ہو سکے۔ میرے محترم ساتھیو، دوستو، صرف فیس بک کے سوالات ہم لے سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس ڈائریکٹ فون نہیں آ سکتا ہے۔ محمد صغیر عالم صاحب ہم سے جڑے ہیں، وہ لکھتے ہیں: السلام علیکم، کیا حال ہے شیخ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، اور امید ہے کہ آپ بھی بخیر ہوں گے۔ میرے محترم ساتھیو، چونکہ یہ آخری عشرہ، آخری 10 دن سے ہم گزر رہے ہیں، جو پورے ماہ مبارک میں سب سے افضل 10 دن ہیں، جن میں سے ایک دن سے پہلے دن سے ہم گزر رہے ہیں۔ اسی کے سلسلے میں آپ لوگوں سے کچھ گفتگو کروں گا انشاءاللہ، اور ساتھیوں سے گزارش ہے، فیس بک والے ساتھی سے، کہ آپ لوگ بھی کچھ سوالات اس 10 دنوں کے بارے میں اسی کے ضمن میں سوالات کریں۔ مدینہ منورہ سے جڑے ہیں محمد ظہیر الدین صاحب، وہ ماشاءاللہ لکھتے ہیں: روزہ، اعتکاف اور شب قدر وغیرہ کے بارے میں آپ لوگ سوالات لکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں یہ رمضان کے آخری 10 دنوں کے بارے میں بیان کر دوں، ان کی عظمت کے بارے میں، اور ان کی جو ہے قدر و منزلت کے بارے میں۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر
मा ला यज्तहिदु फी गैरिहा, रवाहु मुस्लिम। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आखिरी 10 दिनों में इतनी मेहनत करते जितनी मेहनत किसी और वक्तों में नहीं करते थे। यानी इबादत, इताअत, रियासत वगैरह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हद से ज़्यादा इन 10 दिनों में मेहनतें क्या करते थे। एक दूसरी हदीस में आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दखल अल-अश्र अहया अल-लैल व अयक़ज़ अहलहु व जद्द व शद्द अल-मिअज़र, मुत्तफ़क़ुन अलैह। कि जब रमज़ान का आखिरी 10 दिन दाखिल होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को जागा करते, अपने घर वालों को जगाते और बड़ी मेहनत करते और कमर कस लिया करते थे। एक और हदीस में आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअतकिफुल अश्रल अवाखिर मिन रमज़ान हत्ता तवफ़्फ़ाहुल्लाहु सुम्मा अतकफ़ अज़वाजुहु मिन बादिही, मुत्तफ़क़ुन अलैह। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में एतकाफ़ किया करते थे, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला उनको अपने पास बुला लिए। फिर उनके बाद उनकी अज़वाज मुतहरात ने एतकाफ़ किया। ये हदीस बुखारी और मुस्लिम की। मेरे मोहतरम साथियों, दोस्तों, हमसे अभी जुड़े हैं मोहम्मद हदीस साहब जुड़े हैं। तो इन सारे तीनों चारों हदीसों से पता चला कि इन 10 दिनों में, इन 10 रातों में इताअत के कामों में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। इसी तरीके से इन 10 रातों में हमें कम सोना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें जा कर के इताअत और खैर के कामों में हमें लगना चाहिए। इसी तरीके से भी मालूम हुआ कि इन 10 रातों में हम ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल पढ़ें, ज़िक्र अज़कार करें, कुरान की तिलावत करें। इसी तरीके से भी मालूम हुआ कि इन 10 रातों में हम अपने घर वालों को, बाल बच्चों को भी जगाएं ताकि इस खैर के काम में वो भी शामिल हो सकें। इन 10 दिनों में हमें कमर कस लेना चाहिए और भी जो दुनियावी उमूर हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए। इसी तरीके से इन 10 दिनों में हमें किसी मस्जिद में एतकाफ़ करना चाहिए ताकि हम अल्लाह तबारक तआला की भरपूर इताअत कर सकें। इसी तरीके से ये भी मालूम हुआ कि इन 10 रातों में हमें शब क़दर तलाश करनी चाहिए, इसलिए कि शब क़दर जिसको मिल गई उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ हो गए और उसे 83 साल 4 महीने के अजर का सवाब, मेहनत का, इबादत का सवाब मिलेगा। तो इन 10 दिनों में हमें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। मोहम्मद ज़हीरुद्दीन साहब लिखते हैं, एतकाफ़ करना सुन्नत है। एतकाफ़ करना सुन्नत है या फ़र्ज़, और एतकाफ़ कब से कब तक करना चाहिए। देखिए, एतकाफ़ करना सुन्नत है, मसनून है, ये वाजिब फ़र्ज़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर कोई नज़र माने, मन्नत माने कि अल्लाह फ़लाँ चीज़ मुझे हो जाएगी, फ़लाँ नेमत मुझे मिल जाएगी, तो मैं 2 दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए मैं एतकाफ़ करूँगा, तो अगर वो चीज़ हासिल हो गई तो उस पर एतकाफ़ करना वाजिब हो जाएगा, फ़र्ज़ हो जाएगा। ये बंदा अपने से अगर फ़र्ज़ करे तब, हाँ, ये मन्नत और ये नज़र की बात है, वरना यूं ही एतकाफ़ करना मस्जिद में ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ये वाजिब नहीं है। बहुत सारे लोगों ने उड़ा दिया है कि अगर एक गांव में से कोई एक आदमी नहीं बैठेगा तो गांव वाले सारे के सारे गुनाहगार होंगे, ये फ़र्ज़ किफ़ाया वाली बात, ऐसी बात नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है और हमेशा इस पर आप जो है इस्तिमरार बरतते थे। और ये हम कब से शुरू करें, तो आपको इख्तियार है कि 20वीं तारीख़ की जो मगरिब की नमाज़ पढ़े तो आप उस वक्त चाहें तो अपनी जगह पर बैठ जाएं, या नहीं तो 21वीं रमज़ान की सुबह को
फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद आप अपने मुअतकफ़ में यानी एतकाफ़ की जगह में आप दाखिल हो जाएं। तो इस तरह से आप का वो टाइम है ईद के चाँद देखने तक। ईद का चाँद देखा गया तो आप उसमें से मगरिब के बाद निकल सकते हैं, इसलिए कि अब रमज़ान ख़त्म हो गया। ईद का चाँद यानी शव्वाल का चाँद नज़र आया तो रमज़ान ख़त्म हो गया, आप पर से एतकाफ़ ख़त्म हो गया। अगर आप चाहते हैं तो 10 दिन के अलावा 5 दिन भी एतकाफ़ कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो 3 दिन भी एतकाफ़ कर सकते हैं, लेकिन अफजल है कि 10 दिनों तक हम एतकाफ़ करें, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ़ क्या करते थे। 1 दिन और 1 रात का भी हम एतकाफ़ कर सकते हैं। बाज़ उलमा ने तो यहाँ तक कहा है, अल्लाह जज़ाए खैर दे उनको, कि अगर कोई शख्स नमाज़ पढ़ने गया और नमाज के बाद जो तस्बीह पढ़ने के लिए बैठता है, ख़ासकर मगरिब और फजर की नमाज के बाद, अगर वो एतकाफ़ की नियत कर ले तो वो चंद मिनट 5 मिनट या 10 मिनट 20 मिनट जो बैठकर वो ज़िक्र अज़कार में मुबतला रहता है, तो उसे अल्लाह ताला अपने फजल करम से उतने वक्त के एतकाफ़ का सवाब अता फरमाएगा। और एतकाफ़ के मसाइल इंशाअल्लाह ताला आ रहे हैं। अल्लाह आलम सवाब। मोहम्मद हदीस साहब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व बरकातुहू। रोज़ा रख कर नाखून काट सकते हैं? हाँ, बिल्कुल काट सकते हैं। रोज़ा रख कर नाखून काट सकते हैं, मोछ काट सकते हैं, मेहंदी लगा सकते हैं, मिसवाक कर सकते हैं, और भी जितनी चीज़ें हैं जो हमने इससे पहले बतलाए सब कर सकते हैं। नाखून काटने में कोई मुज़ायक़ा, कोई हरज की बात नहीं है इंशाअल्लाह तबारक, इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है। अब आइए आपको बताऊं कि एतकाफ़ किसको कहते हैं और एतकाफ़ क्या चीज़ है और इसको कैसे करना चाहिए, और एतकाफ़ के अंदर कौन कौन सी चीज़ हमें करना जायज़ है और कौन कौन सी चीज़ करना जायज़ नहीं है। एतकाफ़ का माना है मस्जिद को लाजिम पकड़ लेना इबादत के लिए। देखिए, इबादत के लिए शर्त है मस्जिद में ठहरना, घर बार, दुनियादारी, बिजनेस, दुकान वगैरह वगैरह सारी चीज़ों को छोड़ करके मस्जिद में क़याम करना, मस्जिद में बैठना, मस्जिद को लाजिम पकड़ना इबादत के लिए। किसके लिए? इबादत के लिए। न शोर मचाने के लिए, न ग़ीबत चुगलखोरी करने के लिए, न घर से बच्चों से आजिज़ आ करके चलो एतकाफ़ी में हो जाते हैं, वहीं आराम से सोएंगे, वहीं आराम से रहेंगे, कोई गिर फिर नहीं होगा, तो ये नहीं चलेगा। हाँ, ये आराम करने के लिए आप ऐसे करते हैं। तो शर्त यह है कि मस्जिद दुनियादारी को छोड़कर मस्जिद को लाजिम पकड़ना किसके लिए? इबादत के लिए। इबादत के लिए। इबादत का मतलब सिर्फ ये नहीं कि नमाज ही हमेशा पढ़ता रहे, नहीं, ज़िक्र अज़कार करें, कुरान की तिलावत करें, इसी तरीके से किसी बहुत अच्छे आलिम की तकरीर समाअत करें, कोई बेहतरीन किताबें हैं उस किताब का मुताला करें। इन सारी चीज़ों में सबसे बेहतर है कुरान की तिलावत करना। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसका नाम खलवत है। खलवत यानी तन्हाई इख्तियार कर, तो इसका नाम खलवत नहीं है, इसका नाम एतकाफ़ है। एतकाफ़ है। अच्छा, तमाम दुनिया के उलमाए किराम ने इसके मशरू होने पर, सुन्नत होने पर, मुस्तहब होने पर इजमा किया है। इजमा किया, और इसकी कई दलीलें हैं। लेकिन पहले देखते हैं मोहम्मद सग़ीर आलम साहब ने क्या सवाल किया है। शब क़दर के रात में आज़ान 10 बजे होती है, आज़ान 10 बजे होती है, जैसे कि ऐशा के आज़ान अक्सर 8 बजे होती है, ये सही है? नहीं, ये तो अजीब व गरीब बात है। ये अजीब व गरीब बात देखी जा रही है, इसलिए कि आप सारे लोगों को उसमें, जो लोग बेचारे मेहनत कश हैं, मेहनत करने वाले मज़दूर हैं, परेशान हाल हैं, उनको आप मजबूरन 10 बजे इशा की नमाज़ पढ़ाते हैं, ये बेहतर नहीं है। बल्कि अच्छा यह है कि जो इशा का टाइम मुकर्रर है उसी टाइम पर नमाज़ पढ़ें जमात के साथ इशा की। और अगर आप चाहते हैं तो तरावी की नमाज़ पढ़ें, और अगर नहीं चाहते हैं तो आप 12 बजे के बाद पढ़ें। तो ये सब होता है।
सऊदीया में 22 मस्जिदों में देखा गया है कि तरावी की 4 रकात इशा के साथ पढ़ लेते हैं और 12-1 बजे के बाद उस बाकी को पढ़ते हैं और बहुत ही लंबा क़याम, लंबा सजदा और लंबा रुकू करते हैं और बहुत ही दुआ करते हैं लंबी। तो इस तरह से आपको 2-2:30 बज जाता है तो एक क़यामुल लैल में इंशाअल्लाह तबारक व तआला शुमार हो जाएगा। तो ऐसा अगर करें तो बेहतर। और हिंदुस्तान में भी कई जगहों पे ऐसा होता है, लेकिन ये कि 10 बजे रात में हम अजान दें, 11 बजे रात में अजान दें और उसमें माजूर, मिस्कीन, मजबूर लोगों को हम मजबूर करें कि तुम्हें भी जागना है इतने बजे तक, तो ये मुनासिब बात नहीं है। अल्लाह आलम बिस्सवाब। जब्बार अंसारी भी हमसे जुड़े हैं। मोहम्मद हदीस साहब लिखते हैं, मैं सऊदी अरब में हूँ, क्या मैं अपना फ़ितरा यहाँ दे सकता हूँ? हाँ, वहीं आप अपना फ़ितरा दीजिए। आप अपना फ़ितरा वहीं दीजिए किसी मिस्कीन को। आप 1 सा, वहाँ तो आसानी है, वहाँ चावल ख़रीदिए बोरा में 1 सा और वहाँ मिस्कीन या मिस्कीना बैठी रहते उसको दे दीजिए, खलास। फ़ितरा आप जहाँ रहेंगे वहीं आप अदा कीजिए। क्या पता आपकी जानिब से आपके घर वालों ने जमा किया कि नहीं किया, और अगर किया तो वह आम सदका आपकी तरफ से हो जाएगा, घर वालों ने अगर किया है तो। और आप जो वहाँ कर रहे हैं, सऊदीया में कर रहे हैं, तो वो आपके लिए असल फ़ितरा होगा। अल्लाह आलम बिस्सवाब। हाँ, तो मैं कह रहा था कि एतकाफ़ सुन्नत है और इसकी कुरान में, सुन्नत में और इजमाए उम्मत में दलील है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, और बीवियों से दूर रहो, बीवियों से मुबाशरत नहीं करो इस हाल में कि तुम मस्जिदों में एतकाफ़ करते हुए हो, यानी एतकाफ़ की हालत में बीवियों से दूर रहो। तो यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला ने साबित किया कि मस्जिदों में एतकाफ़ होता है और ये मशरूइयत की दलील है, ये मशरूइयत की दलील है। मोहम्मद सदर आलम साहब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और कहाँ से भाई लोग हैं, अगर लिख दें तो बहुत अच्छी बात होगी, खुशी होगी कि मैं फ़लाँ जगह से हूँ, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, वतहिर बैती लित्ताइफीन वल आकिफीन वरुक्कइस सुजूद, के इस खाना काबा को, इस हरम पाक को ऐ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पाक कीजिए तवाफ़ करने वालों के लिए, एतकाफ़ करने वालों के लिए, रुकू और सजदा करने वालों के लिए। तो इस आयत से भी मालूम हुआ कि एतकाफ़ करना मशरू है। हदीसों में बहुत सारी हदीसें आई हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतकाफ़ किया, सहाबा कराम ने भी एतकाफ़ किया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपके अज़वाज मुतहहारात ने भी एतकाफ़ किया। तो इन सारे दलीलें इस बात पर दलालत करती हैं कि एतकाफ़ करना मशरू है, सुन्नत है, और सारे उलमा कराम का इस पर इत्तेफाक है। अच्छा, जो लोग या जिन हदीसों में ये ज़िक्र आया है कि एतकाफ़ करने का ये सवाब है, वो सवाब है, ये हज का सवाब है, तो इतने उम्रे का सवाब है, ये सारी हदीसें ज़ईफ़ हैं, ये सारी हदीसें ज़ईफ़ हैं। इसके लिए इतना काफ़ी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतकाफ़ किया। अब्दुल हकीम नेपाली साहब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं कतर से हूँ, माशाअल्लाह, जहाँ भी आप लोग रहें अल्लाह तबारक तआला आपको खुश खुर्रम रखे, हमारे और आपके और सारे मुसलमानों के रोज़े, नमाज, तरावी वगैरह को कबूल फरमाए, और जहाँ भी रहें हमें हर मुसीबत, हर बल्लियात से अल्लाह हमारे भाइयों को तो महफूज रखे। मोहम्मद ज़हीरुद्दीन साहब लिख रहे हैं, ज़कात की रकम से गरीबों में राशन बांटना कैसा है? गरीबों में अगर आप महसूस कर रहे हैं या कुछ अहले खिबरा अगर बैठ कर के, जैसे ईद का वक्त मौका है, तो अगर ईद के मौका पर ज़कात के पैसों से बच्चों के कपड़े और जो है राशन का सामान, सवई वगैरह वगैरह ख़रीद के अगर गरीबों में दिया जाए तो हमारे ख्याल से इसमें कोई हरज की बात नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, वो रकम ही दे दे और अपना वो घर वाले जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। तो ये बेहतर है कि जो रकम हम निकालें, जो पैसे हम निकालें ज़कात के, वो पैसे हम दें। और अगर नहीं दे रहे हैं और राशन ख़रीद के दे रहे हैं तो ये भी कोई मुश्किल की बात इंशाअल्लाह तबारक व तआला नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये ज़रूरी है
کہ وہاں چند اہل خبرہ بیٹھیں اور اندازہ لگائیں کہ مثلاً بیوہ عورت ہے، وہ گھر سے باہر نہیں نکل پا رہی ہے، پریشان حال ہے، تو اس وقت ان کو راشن دینا، ان کے بچوں کو کپڑا دینا، ان کے لیے کپڑا دینا، ان کے لیے سوئے اور گوشت وغیرہ کا انتظام کرنا، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ تو حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ساری چیزیں اگر کریں تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس میں خیر کا پہلو زیادہ نمایاں رہے گا۔ اللہ عالم ثواب۔ محمد صغیر عالم، کسی کو افطاری کرایا اور سوشل میڈیا پر فوٹو وائرل کر دیتا ہے، یہ جائز ہے؟ دیکھیے صغیر صاحب اور سامعین کرام، کچھ جو مثلاً عرب ممالک میں، قطر، سعودی وغیرہ میں جو لوگ رہ رہے ہیں، وہ اگر ہمارے غریب ملکوں میں دیتے ہیں افطاری کے لیے تو وہ شرط لگاتے ہیں کہ بینر لے کر کے یا بغیر بینر کے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی لوگ کھا رہے ہیں، کتنے خوش ہو رہے ہیں۔ تو وہ اس انداز سے اگر صرف فوٹو لے کر کے اس متبرع تک بھیج دینا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی مذائقہ کی بات نہیں، تاکہ وہ متبرع جو ہے، جو پیسہ دیا ہے ڈونر، وہ خوش ہو اور اس کو یقین ہو جائے کہ جس کو ہم بیچ میں مادھیم بنائے ہیں وہ ہمارا مال مستحقین تک پہنچایا ہے، افطاری کروایا ہے۔ لیکن یہاں پہ اپنا سنستھا جو نیپال میں ہے یا انڈیا میں ہے، اپنا سنستھا کو اجاگر کرنے کے لیے اور اپنے سنستھا کو جو ہے مشہور کرانے کے لیے، مدرسے کو مشہور کرانے کے لیے اس متبرع کا دیے ہوئے مال کو بینر لگا کر یا بلا بینر کے وہ اگر فیس بک پر غریبوں کے ہاتھ میں ڈالتے ہوئے، غریبوں کے سر پر ڈالتے ہوئے اگر اس کو سوشل میڈیا پر اگر نشر کر رہا ہے، شیئر کر رہا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے، اور یہ اپنے آپ کو مشہور کرنا ہے، جو بالکل غلط ہے۔ دوسرے کا مال اور اپنی شہرت، مال دوسرے کا اور شہرت، اپنی جھوٹی شہرت حاصل کرنے کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ؟ آپ مادھیم ہیں، آپ واسطہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر دے گا ضرور، اس لیے کہ آپ مستحقین تک پہنچائے ہیں، لیکن یہ شو بازی کیوں کر رہے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا، میں نے کئی فیس بک پر دیکھا ہے کہ ایک بوتل پانی اور ایک ڈبہ کھانا لیے ہوا ہے، اور کئی غریبوں کے پاس وہی ایک ہی چیز رکھ کر کے یہاں فوٹو لیا، پھر وہاں سے لے لیا، وہاں فوٹو لیا، پھر وہاں لیا، پھر وہاں لیا۔ یہ ایک مذاق ہے، غریبوں کے ساتھ ایک مذاق ہے۔ ہر آدمی کی اپنی ایک عزت ہوتی ہے، عزت نفس ہوتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ متبرع تک کا معاملہ ہے، آپ متبرع تک بھیج دیں، پہنچا دیں، سوشل میڈیا پر آپ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر آپ اپنے مدرسہ اپنا پیسہ خرچ کر کے کر رہے ہیں اور شوق جمانا چاہتے ہیں، شہرت پانا چاہتے ہیں، تو کیجئے۔ آپ کو صرف شہرت ملے گی، ثواب نہیں ملے گا، شہرت ملے گی، ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، نیت ہماری خالص ہونی چاہیے، اور جس کو ہم دے رہے ہیں اس کی عزت کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ جو نہیں چاہتے ہیں، مر جائیں گے لیکن وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی عزت کا خیال، اس کی خودداری کا خیال رکھنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اللہ عالم ثواب۔ محمد صدر عالم صاحب لکھتے ہیں کہ فطرہ کی رقم کو محلہ کے مدرسہ میں استعمال کرنا کیسا ہے؟ ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فطرہ کا جو حق بتلایا ہے، وہ فرمایا کیا کہ طہرۃ للصائم و طعمۃ للمساکین، کہ روزے دار کو جو روزے کی حالت میں کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو ان غلطیوں کو تلافی کرنے کے لیے یہ ہے فطرہ، اور دوسرا یہ کہ مساکین کے کھانے پینے کے لیے ہے، مساکین کے کھانے پینے کے لیے ہے۔ تو سارے کے سارے پیسے کو مدرسے میں رکھ لینا یہ بہتر نہیں ہے، بلکہ چند آدمی بیٹھ کر کے اس میں سے کچھ رقم مخصوص کر دے اور غریبوں میں اعلان کر دے مائک سے، کہ یا یوں ہی خبر بھجوا دیں کہ جو لوگ لینا چاہتے ہیں وہ چپکے سے آ کر کے سیکریٹری سے یا امام مسجد سے جو ہے 2000 مثلاً یا 3000 فی گھر آپ لے جائیں، تو ان کے لیے کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ تو اس طرح اگر کریں تو کچھ حق غریبوں میں بھی پہنچ جائے گا، اور کچھ حق جو مدرسہ ہے، جو کوئی اس کا جو ہے پوچھنے والا نہیں ہے، تو اس میں بھی اگر خرچ ہو جائے تو
इंशाअल्लाह तबारक व तआला कोई मुश्किल नहीं हो, फ़ी सबीलिल्लाह में वो भी दाखिल हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे गांव हमने देखे हैं कि जहां मस्जिद तो है, इमाम नहीं है, मदरसा है, उसमें कुत्ते बैठे रहते हैं, बिल्लियां बैठी रहती हैं। क्यों नहीं ऐसा? तो इमाम को तनख्वाह नहीं देने के लिए पैसे नहीं हमारे पास। तो अगर ऐसी मुसीबत की घड़ी में अगर उन जगहों पर फितरे का पैसा इस्तेमाल किया जाए, कुछ गरीबों में तकसीम करके और कुछ अपने यहाँ रख करके, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं होगी। अल्लाह आलम बिस्सवाब। मोहम्मद मुआज साहब भी हमसे जुड़े हैं, अब्दुल हफीज़ साहब भी हमसे जुड़े हैं। देखिए टाइम तकरीबन आधा घंटा हमारा गुजर चुका है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जल्द अज जल्द सवालात करें और सवालात के जवाबात पाएँ। अल्लाह हमारी और आपकी इन मेहनतों को कबूल फरमाए। तो मैं कह रहा था कि एतकाफ़ के बारे में बहुत सारी ज़ईफ़ हदीसों में आया है कि एतकाफ़ करने से एक हज का या 2 उम्रे का या ये वो सवाब मिलता है। ये सब जो है ज़ईफ़ हदीस है, ये सब ज़ईफ़ हदीस है। एतकाफ़ मस्जिद में होना चाहिए, एतकाफ़ मस्जिद में होना चाहिए। जामे मस्जिद में हो तो बहुत ही बेहतर है, ताकि जुमा के लिए ना निकलना पड़े। और अगर वो मुयस्सर नहीं है तो किसी भी मस्जिद में जिसमें जमात होती है, शर्त है कि जमात होती है, तो उसमें एतकाफ़ कर सकते हैं। लेकिन जुमा का वक्त होगा तो आखिरी वक्त में, यानी इमाम को खुतबा पर चढ़ने से पहले, मिंबर पर चढ़ने से पहले 2 मिनट 3 मिनट पहले वो मस्जिद में, जामे मस्जिद में आ सकते हैं। और जो है वो इस तरह से एतकाफ़ में कोई हर्ज की बात नहीं होगी इंशाअल्लाह तआला। मोहम्मद हदीस साहब लिखते हैं कि बग़ैर शहरी खाए रोज़ा हो सकता है? हाँ, रोज़ा हो सकता है। शहरी ये सुन्नत है, खाना वाजिब नहीं है। हाँ, और ये अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि हमारा बंदा हमारा हुक्म माने, हमारी इताअत करे। हाँ, तो इस वजह से शहरी लास्ट वक्त में का खाने के लिए अजान से 2 मिनट 3 मिनट पहले खा करके बिल्कुल तैयार हो जाएं। इसके कई फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये कि ये सुन्नत है। दूसरा फ़ायदा ये कि बहुत देर तक हम दिन में जो कमज़ोरी का से लड़ते रहेंगे और हमें ताकत होती रहेगी। और बहुत सारे लोग हैं कि ज़ोहर तक माशाअल्लाह डटे रहते हैं, ज़ोहर के बाद जो है कुछ नकाहत और कुछ कमज़ोरी आ जाती है। तो अगर बग़ैर सहरी खाए हुए भी कोई शख्स अगर रोज़ा रखना चाहे या वो नहीं खा सका, बग़ैर सहरी के नहीं खा सका, तो इंशाअल्लाह ताला उसके रोज़े में कोई खलल नहीं होगा, उसका रोज़ा हो जाएगा। अल्लाह वालम। हाँ, लेकिन अड़ जाए और ढिठाई से कहेगा हमें क्या खाने फ़ायदा है, 12 ही बजे खा करके सो जाए और उठे एक ही बार ज़ोहर के वक्त, हाँ, तो उस फजर की नमाज भी गोल, सारा गोल, और बेचारे जो है सवाब में भी गोल अंडा मिलेगा। और अफसोस की बात यह है, एक बात मैं बता देना चाहता हूँ अपने साथियों से, कि रात शब कदर थी हिंदुस्तान नेपाल में, माशाअल्लाह बहुत सारे लोग जगे, चाय बनाए, बिरयानी सुनने में आया कि क्या क्या खाए पकाए, और फजर की नमाज से पहले खर्राटे लेने लगे। फजर की नमाज से पहले खर्राटे लेने लगे तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है पूरी रात जाग कर। इसीलिए किसी अरबी ने कहा था कि सामत वाल नहार व अफ्तर अला बसलिन, कि पूरे दिन रोज़ा रखा और प्याज खा करके इफ्तारी किया, प्याज खा करके इफ्तारी, रोज़ा तोड़ा। तो वही कहते हैं कि पूरी रात जागा और फजर की नमाज गोल कर गया तो कोई फ़ायदा नहीं जाएगा। इसलिए कि फजर की नमाज फ़र्ज़ है और जागना ये सुन्नत है, जागना मुस्तहब है, और मुस्तहब और फ़र्ज़ एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकता। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, अगर आप पूरी रात जागते हैं तो चंद मिनट के लिए आप मस्जिद और जाग करके फजर की नमाज़ पढ़ के सो जाएं, अला तूल सो जाएं और देर तक सोए रहें, कोई मुश्किल की बात नहीं है। लेकिन फजर की नमाज़ छोड़ करके सोएंगे तो आपका पूरी रात का जागना ये बेकार हो जाएगा, बेला फ़ायदा हो जाएगा। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना नहायत ही ज़रूरी है। मेरे भाइयों दोस्तों, ये प्रोग्राम आप फेसबुक के साथ साथ रेडियो पर भी सुन रहे हैं, जो 95.5 मेगाहर्ट्ज़ जनक नंदनी FM जनकपुर धाम धनुषा नेपाल में भी नशर किया जा रहा है, और मोहम्मद मुस्तकीम मदनी फेसबुक ID पर भी डायरेक्ट नशर किया जा रहा है, और जनक नंदनी FM फेसबुक ID पर भी
नशर किया जा रहा है। अब्दुल हफीज़ साहब लिखते हैं, अगर सहरी करते हुए आज़ान हो जाए तो क्या उसका रोज़ा होगा? हाँ, हो जाएगा, उसका रोज़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, कोई मुश्किल की बात नहीं है। आप जल्दी निमटा लें, ऐसा ना हो कि नाक तक जो है ठका करके खाएं, नहीं, आप जल्दी निमटा लें और जल्दी मुँह हाथ पानी वानी पी कर कुली लेकर के नमाज के लिए फारिग हो जाएं, तो इंशाअल्लाह ताला इसमें कोई हरज की बात नहीं है। बहुत सारे लोग प्लेट लेकर के, हाथ में गिलास लेकर के बैठे रहते हैं कि जब अजान होगी तभी खाएंगे तभी पिएंगे, तो ये सही नहीं है। हाँ, आप खा ही रहे हैं, अजान हो गई तो जल्दी उसको निमट लें और खा पका लें, इससे रोज़ा में कोई हरज की बात नहीं है इंशाअल्लाह ताला। अब्दुल हकीम नेपाली साहब लिखते हैं, एक आदमी है जो बहुत ही मरीज़ है और उसको खून की ज़रूरत है, तो एक आदमी रोज़ा से है, तो क्या वो आदमी रोज़ा तोड़कर उस आदमी को खून दे सकता? हाँ, दे सकता है, रोज़ा तोड़ लेगा और उस आदमी के लिए अल्लाह तबारक तआला बहुत बड़ा अजर देगा और वो रोज़े की क़ज़ा करेगा, वो रोज़े की क़ज़ा करेगा और खून अतिया देने में, खून का तोहफ़ा देने में अल्लाह तबारक व तआला उसको बहुत बड़ा अजर देगा और उसको रोज़ा तोड़ने में कोई गुनाह नहीं, बल्कि उसको जो है आगे अल्लाह तबारक तआला बहुत बड़ा सवाब से नवाजेगा। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम रोज़ा से हैं, कैसे खून दें, हम ये कैसे करें वैसे करें, नहीं, बल्कि ज़रूरी है। अगर आपका खून मिल रहा है ग्रुप और आपके अलावा कोई नहीं है, तो अगर देखा जाए तो आप पर वाजिब है कि रोज़ा तोड़ें और उसको खून दें। अगर डॉक्टर ने मिला दिया कि इसका खून ले सकते हैं, तो इस मिसाल के तौर पर कोई पानी में डूब रहा है तो आप पर ज़रूरी है कि आप रोज़े की परवाह न करें और उसको डूबते हुए को आप यानी बचा करके लाएं। इस तरह से कई ऐसे मौक़े हैं जहां रोज़ा तोड़ने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वहां हम रोज़ा तोड़ें और इंसानियत को बचाएं, इंसान को बचाएं। इतना क्लोज और इतना सख्त हमारा मज़हब नहीं, बहुत ही आसान मज़हब है हमारा, बहुत ही निराला और पसंदीदा है। हर चीज़ का हल इसमें मौजूद है इंशाअल्लाह ताला। मोहम्मद ज़हीरुद्दीन साहब लिखते हैं, ज़कात की रकम चोरी होने पर फिर से ज़कात निकालना ज़रूरी होगा? जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अभी तो अजीब मामला है, सिर्फ ज़कात ही का माल चोरी हुआ और माल नहीं चोरी हुआ, हमको तो हैरत की बात लग रही है। अब कहाँ पे रखे हुआ था, बरामदे में रखा या यूँ फेंक दिया कि ज़कात का माल है, चलो जो लेना है ले ले, तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। वो माल है, अल्लाह का हक़ है, वो हम हक़दार तक पहुँचाएँ। तो अगर आपने चोरी या आपने जो है ज़कात के लिए माल निकाला और आप जा रहे हैं कहीं बांटने के लिए, रास्ते में चोरी हो गया, तो आपने तो माल निकाल लिया, चोरी हो गया, वो जो है फिर दोबारा आप पर निकालना वाजिब नहीं है। आपने निकाल दिया अपने हिर्ज़ से, यानी अपनी जगह से, अपने घर से आपने निकाल लिया, तो इंशाअल्लाह ताला वो आपकी ज़कात की अदायगी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो आम सदका आप करें, तो ये आपके लिए बेहतर की बात बेहतर होगा इंशाअल्लाह ताला। हमसे जुड़े हैं लेट से यूनिक से साहब से कहेंगे कि आप अपना सवाल पेश करें, इंशाअल्लाह ताला उसका जवाब दिया जाएगा। मेरे मोहतरम साथियों, दोस्तों, हमने बतलाया कि एतकाफ़ हर मस्जिद में जिसमें जमात होती है उसमें जो है कर सकते हैं एतकाफ़। अगर जामे मस्जिद हो तो ज़्यादा बेहतर है, और अगर जामे मस्जिद नहीं है तो जुमा अगर जमात हो रही है, शर्त है कि उसमें जमात होनी चाहिए। तो जमात इसलिए कि हर वक्त आपको जमात के लिए निकलना ये बेहतर नहीं, तो इस बात को याद रखना चाहिए। औरतें भी एतकाफ़ कर सकती हैं, लेकिन औरत के लिए घर में एतकाफ़ नहीं, घर में कोई एतकाफ़ नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिल मसाजिद में एतकाफ़ होना चाहिए, घर में नहीं। और दूसरी बात यह कि औरत को शौहर की इजाज़त लाजिम है, शौहर की इजाज़त लाजिम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहहरात, जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहयात रहे उस वक्त तक आपकी अज़वाज मुतहहरात ने एतकाफ़ नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद अज़वाज मुतहहरात ने एतकाफ़ किया। तो इसी तरीके से जो कोई नीम बालिग लड़का है और वो भी अगर एतकाफ़ करना चाहता है तो कर सकता है। कोई नौकर चाकर है घर में, तो अपने मालिक की इजाज़त से एतकाफ़
कर सकता है। इसी तरीके से अगर औरत मस्जिद में है और एतकाफ़ कर रही है, उस हालत में अगर हैज़ आ गया या नफास का खून आ गया तो उस पर वाजिब है कि वो मस्जिद से निकलें और एतकाफ़ को भंग करें, ख़त्म करें। हाँ, इसी तरीके से अगर कोई शख्स एतकाफ़ में घुसा और कोई ऐसी मुसीबत आ गई, कोई ऐसा उज़्र आ गया, कोई ऐसी बड़ी परेशानी आ गई कि उसको एतकाफ़ तोड़ना पड़ रहा है, तो उसको एतकाफ़ तोड़ ले और उस परेशानी को दूर करे, उसका एतकाफ़ ख़त्म हो जाएगा। फिर वो अगर उसकी क़ज़ा करना चाहे तो आन दिनों में करे, और नहीं तो उस पर कोई मुश्किल की बात नहीं है। एतकाफ़ में ये जो फेसबुक और माशाअल्लाह और व्हाट्सअप, और ये कोई कहा कि हमें अगर नेट रहे मौलाना तो 2 दिन भी खाना नहीं दीजिए तो हम भूखे नेट चलाते रहेंगे और चैटिंग करते रहेंगे, फेसबुक पर शेयर और वो लाइकिंग करते रहेंगे, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते रहेंगे, और अब तो और क्या क्या मुसीबतें आ गई है। तो एतकाफ़ में बैठने जाएं तो ये चैटिंग फेटिंग, ये टच मोबाइल वगैरह सब न ले जाएं, बेहतर है न ले जाएं, समझ गए। अल्लाह के लिए आप इबादत करने के लिए बैठे, मोबाइल का चक्कर छोड़ें। 1 हफ्ता 10 दिन आप इन सारी चीज़ों से आप अल्लाह के लिए हो जाएं, तब पता चलेगा कि अब क्या है। और वहाँ जा कर के कब्र की तन्हाई को याद करें कि आज हम पूरे बाल बच्चों से, समाज से अलग थलग है, मस्जिद में हैं, न मोबाइल, न व्हाट्सअप, न फला, न चिल्ला। हाँ, तो उसको आप याद करके आप मस्जिद को, कब्र को याद करें, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे आपके दिल में बहुत सारा तक़वा पैदा होगा, बहुत सारी चीज़ें पैदा होगी। आखिर वक्त में अलाउद्दीन सलफ़ी साहब हमसे जुड़े हैं। अब हमारे पास तकरीबन 8-9 मिनट बाकी हैं। रेडियो का टाइम, फेसबुक पे तो दिन भर भी बैठे सकते हैं, कोई मुश्किल की बात नहीं। इसी तरीके से आदमी को, हाँ, एतकाफ़ में बैठने वाला क्या दर्स दे सकता है, कुरान हिफ्ज़ करवा सकता है, या चंद विद्यार्थियों को, बच्चों को बैठा के कुरान की तालीम दे सकता है? तो हाँ, तालीम दे सकता है, वो दर्स दे सकता है, वो सवाल का जवाब दे सकता है। ये भी तो बहुत बड़ी इबादत है, ये भी तो बहुत बड़ी इबादत है, किसी के सवाल का जवाब देना, किसी को दर्स देना, दर्स कुरान, दर्स हदीस देना, ये भी तो बहुत बड़ी इबादत है। तो इन सारी चीज़ों, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और हमने बतलाया मौलवी शहीरुद्दीन साहब के जवाब में कि एतकाफ़ में कब बैठेगा आदमी? 20वीं तारीख के शाम में मगरिब के बाद, या 21वीं के सुबह फजर के बाद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 21वें रोज़े को फजर नमाज के बाद अपने एतकाफ़ की जगह पर बैठ जाते थे। मस्जिद में आप चौकी से घेर सकते हैं, मच्छरदानी लगा करके, या पर्दा करके रख सकते हैं, और यूँ अगर चाहें तो बिला पर्दा भी रख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आप जो है मस्जिद के अंदर रहें, मस्जिद के अंदर रहें। हाँ, इधर उधर उचक्कापनी, इस खिड़की में से झांकना, उस खिड़की से झांकना, ये सारी चीज़ें ना करें। और जो इमाम साहब रहते हैं मस्जिद के रूम में, तो आप उस मस्जिद के रूम में भी जा कर के इमाम से गुफ्तगू न करें। आंगन तक, जहाँ तक नमाज होती है वहाँ तक आप घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, मस्जिद की छत पर जा सकते हैं, लेकिन जो चीज़ मस्जिद से खारिज है वहाँ आप नहीं जा सकते हैं। अगर टॉयलेट का इंतज़ाम अंदर है तो अंदर ही टॉयलेट से फारिग हों। खाने पीने का इंतज़ाम अगर आपको मस्जिद में ला रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो आप चंद मिनट के लिए होटल में जा सकते हैं, खा करके आप निकल सकते हैं। ये ज़रूरियात चीज़ें हैं, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी है। अलाउद्दीन सलफ़ी साहब सवाल लिखते हैं, क्या नाबीना आदमी के लिए जमात में हाज़िरी ज़रूरी? हाँ, बिल्कुल ज़रूरी। अगर वो आज़ान सुनता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो हाज़िरी दे। एक नाबीना सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरे घर और आपके मस्जिद के दरमियान बीच में बड़े ख़राब रास्ते हैं और मुझको लाने वाला भी कोई नहीं है, मैं नाबीना आदमी हूँ, क्या मैं आज़ान सुन करके या मैं अपने घर में नमाज़ पढ़ सकता हूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि हाँ, तुम पढ़ सकते हो। जवाब तो दे दिए, लेकिन फ़ौरन फरिश्ते का नुज़ूल हुआ और बुलाए उस सहाबी को कि कहाँ है वो नाबीना सहाबी? कहा कि यहाँ हूँ मैं। तो कहा कि क्या तुम अज़ान की आवाज़ सुनते हो? तो कहा कि हाँ सुनते हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब अज़ान की आवाज़ सुनते हो फ़अजिब, तो तुमको जमात में आना ज़रूरी है, जमात में आना ज़रूरी है। देखिए, एक नाबीना शख्स, और हम हट्टे कट्टे मोटे ताज़े माशाअल्लाह,
चर्बी ही वाले हैं, तो फिर भी हम जो है नमाज नहीं पढ़ते। तो जमात की बात किया है, नमाज ही नहीं पढ़ते, फास्टिंग में, गुटखा खाने में, कोका कोला, मिरिंडा, क्या क्या मुसीबत खाने पीने में आगे हैं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, टाइम नहीं है, या ये मुसीबत है, वो मुसीबत है, ये है, वो है, सारी मुसीबतें आ जाती। एक जगह मैं देखा, सऊदी अरब का था शायद, वो कुछ हल्का वीडियो, कि एक बूढ़ा नाबीना था, बुजुर्ग भी था, नाबीना भी था, तो घर से लेकर मस्जिद तक एक रस्सी बांध दिया था, खुट्टा खुट्टा खंबा गाड़ करके छोटा छोटा, और उसी को पकड़ करके वो बेचारा मस्जिद तक आता और नमाज के बाद फिर वो उसी रस्सी को पकड़ करके अपने घर चला जाता था। तो जो भी सूरत इख्तियार करें, हम जमात में उसको नाबीना को शरीक होना ज़रूरी है, इल्ला है कि वो बीमार पड़ जाए और भी कोई सूरत है तो उसकी बात अलग है। अल्लाह वाला में सवाब। मोहम्मद मतियुर रहमान साहब भी हमसे लास्ट में जुड़े हैं। अब मेरे पास सिर्फ जो है 2 या 3 मिनट रेडियो का टाइम बाकी रह गया है। मतियुर रहमान साहब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोई सवाल है तो सवाल लिख कर भेजें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसका जवाब दिया जाएगा। अच्छा, और भी चीज़ें हैं कि क्या एतकाफ़ करने वाले से बीवी आकर के मुलाकात कर सकती है, उसके बच्चे एतकाफ़ की जगह पे आकर राय सलाह ले सकते हैं? तो हाँ, ले सकते हैं, उसकी बीवी भी आकर के मुलाकात कर सकती है, लेकिन वहाँ इधर उधर शुरू न कर दे, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद, औरतों से मुबाशरत से दूर रहो इस हाल में कि तुम मस्जिद में तुम एतकाफ़ में बैठे रहो। हाँ, मस्जिद में बातचीत करने के बाद अगर रास्ता सुनसान है तो आप बीवी को उसके घर तक पहुंचा सकते हैं, घर के दरवाजे तक पहुंचा सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफ़ा हज़रत सफ़िया बिन्त हुई बिन उख्तब उम्महातुल मोमिनीन में से हैं, तो वो आई मिलने के लिए, और बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको छोड़ने के लिए उनके घर, इसलिए कि उनका घर मस्जिद से उस तरफ था और माई आयशा का घर मस्जिद के बिल्कुल दीवार में सटा हुआ था। तो कभी कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ़ में रहते और अपना सर उस सुराख होकर के, खिड़की होकर के हज़रत आयशा के रूम में डाल देते, और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कंघी कर दिया करती थी, बाल में तेल वगैरह लगा दिया करती थी। तो ये सारी चीज़ें जायज़ है। अगर कोई राय सलाह, जैसे गांव का कोई मुख्य आदमी है, सेक्रेटरी है, सदर है वगैरह वगैरह, अगर किसी चीज़ में जो है राय सलाह की ज़रूरत पड़े तो मस्जिद में रहते हुए राय सलाह दी जा सकती है। इसी तरीके से एतकाफ़ में बैठने वाला ख़रीदो फ़रोख्त नहीं कर सकता है कि मोबाइल ही से फ़ोन कर दिया होल सेल दुकान में कि हमारे घर इतना कपड़ा भेज दो, ये कर दो, वो कर दो, ये सब जायज़ नहीं है। ख़रीदो फ़रोख्त जायज़ नहीं है। आप अल्लाह के लिए हैं, खामोशी से आप अल्लाह अल्लाह करें और ज़िक्र अज़कार में लगे रहें, नहीं तो आपका एतकाफ़ बातिल हो जाएगा बिला ज़रूरत इधर उधर करने से और हाथ पांव मारने से, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, ये एतकाफ़ का वक्त है, ये शब क़दर का वक्त है, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां हासिल करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है हासिल करके अल्लाह की क़ुर्बत हासिल कर सकते हैं। और हैरत की बात यह है कि शब क़दर में देखिए, आप इशा के बाद खाना खाएं, खाना खाने के बाद 10-11 यूँ ही बज जाता है, 11 बजे के बाद आप मस्जिद में जाएं या अपने रूम ही में कुरान की तिलावत करें, ज़िक्र अज़कार करें और जो है वहीं पे आप शब क़दर मनाएं, तो कोई मुश्किल की बात नहीं है। तो इतने 3-4 घंटे जा करके अगर आपको शब क़दर मुयस्सर हो गई, मिल गई, तो आपको 83 साल 4 महीना इबादत करने से अफजल आपको वो रात मिल गई। कितनी खुशबख्ती है हम उम्मत मुहम्मदिया के लिए, और कितनी खुशबख्ती हमारे लिए है। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, इन चीज़ों को हम गनीमत जानें और गनीमत जान करके हम जो है इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। इसीलिए इसी में हमारे लिए भलाई है। और ये रमज़ान का आखिरी अशरा है, इसमें हम गरीबों का भी ख्याल रखें, सिर्फ अपने ही जो है सवई और वगैरह वगैरह सारी चीज़ें ना करें, बल्कि जो अड़ोसी पड़ोसी है, गरीब है, हमारे रिश्तेदार जो गरीब लोग हैं, उनकी भी देख देख करें। कुछ पैसे उनके पास भी भेजा दें, कुछ कपड़े ख़रीद करके उनके पास भी भेजा दें, ताकि वो भी अपनी ज़रूरत पूरी कर लें। अब मैं आपसे जुदा हो रहा हूँ, रेडियो का टाइम ख़त्म हो गया है और फेसबुक पर भी सवालात नहीं आ रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे रोज़े, हमारी तरावी
ہمارے سارے عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اے اللہ جو بھائی سوال کیے ہیں، جڑے ہیں ہم سے اور سوالات کیے ہیں، سنے ہیں اور سننے والے ہیں، اے اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کی ساری محنتوں کو قبول فرما، ان کی عبادات کو قبول فرما، اور ہم سارے لوگوں کو مصیبت بلیات اور پریشانیوں سے دور رکھ۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ جب تک اس دنیا میں ہم لوگوں کو زندہ رکھ، قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نکلے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی نبی وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔